Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. In the previous class, students, we completed our poem, The Silent Snake, right? And I hope that you have completed all the exercises related to it in your notebook. And if not, then you can complete it if you will have some time till the time we complete our grammar chapter, right? And we were already done with chapter number 13 and 14 from your English grammar book, that is Collins English Grammar, right? Chapter number 13 was simple present and present continuous tense, and chapter number 14 was simple past and past continuous tense. And as I informed you before, both the chapters are of PT2, right? ये PT1 से पहले करवाए थे दोनों चैप्टर मैंने, और मीनाज लेटर भी मैंने एग्ज़ाम से पहले करवाया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीनाज लेटर जो है वो भी आपको PT2 में आएगा, और 13 और 14 जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे ग्रामर के, राइट, वो दो चैप्टर्स भी हम PT2 में ही लेने वाले हैं। वो दोनों चैप्टर्स का रिवीजन हम लाइव क्लास में करेंगे। वी आर गोइंग टू कैरी आउट द रिवीजन ऑफ बोथ द चैप्टर्स इन द लाइव class. But today we would be starting with the new chapter, that is articles, chapter number 11, and it's on page number 48 in your grammar book. So students, I request you all to open your English grammar textbook, that is Collins Revised English Grammar and Composition, right? And please open page number 48 and let's see our chapter articles. Now what are articles, students? I hope that you are familiar with three words जो है a, n and the. I hope कि आपने ये तीनों वर्ड्स पहले सुने भी हैं और यूज़ भी किए हैं सेंटेंस में, है ना? और ये जो तीनों वर्ड्स है a, n and the, what do you think, where do we place them? We can normally find these words a and the. ये तीनों words हम normally कहाँ find करते हैं? Before a noun. Where do we see it? Before a noun, right? That means these are the words which indicates which noun we are talking about, right? ये जो तीन words हमने देखे a, an and the, ये तीनों आर्टिकल्स है, ठीक है? और ये आर्टिकल्स का काम क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नाउन अबाउट whom वी आर रेफरिंग और अबाउट whom वी आर टॉकिंग. ओके, दैट इज़ द जॉब ऑफ आर्टिकल्स. We will come to its definition, right? We are going to see the definition. But before moving ahead with the definition, let's just see the conversation which is given over here. We will read the conversation between Komal and her mother and circle all the words that come after a, n and the. मतलब a, n और the के बाद जो भी words आते हैं उन्हें हमें circle करना है, right? So let's see that. Mother: Komal, could you please set the table? Your students, if you notice, ध है हमारे पास और उसके बाद जो वर्ड है वो है टेबल. कोमल सेड येस आई विल. मदर: प्लीज कीप ए प्लेट, ए फोर्क, ए नाइफ एंड ए नाइफ ऑन द टेबल while I make breakfast for you. Also have the glass of milk. और जैसे ही हमको बताया गया है, वी हैव टू सर्कल द वर्ड्स आफ्टर ए, एन एंड द. सो हियर ए के बाद जो वर्ड है वो प्लेट, देन फोर्क, नाइफ, टेबल एंड ग्लास, राइट? आफ्टर ए, एन एंड द. Komal says, yes mother. Mother, would you like to have an egg for the breakfast? And egg, n के बाद लिखा है egg, तो उस वर्ड को हम सर्कल करेंगे. Mother: yes, thank you. So this is the conversation between mother and Komal.
where we found out the words. I am just going to underline it, okay, because सर्कल करने से पूरा कवर हो जाता है इसीलिए, ठीक है, लेकिन आपको सर्कल ही करना है। ये सारे जो वर्ड्स है, टेबल, प्लेट, फोर्क, नाइफ, वापस दूसरी बार टेबल आया, ग्लास एंड एग, राइट। नाउ इफ़ यू नोटिस, इनके आगे हमने क्या फाइंड आउट किया, ए है, एन है और ध है, राइट। वी हैव ए, एन और ध। Now if you observe this conversation, the words used after A are nouns that begins with a consonant, that is plate and fork, and these words are also singular in number. And the word used after N is the noun that begins with the vowel. It is also singular in number, and the word used after the refers to particular thing. The glass of milk refers to particular glass which has milk in it. So students, इस conversation से आपको एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे ये जो words है students, right, ये जो words है, plate है, फिर है fork, table, knife, egg and glass of milk. Now if you notice, all these words are nouns, है ना। ये सारे क्या थे, मैंने जो लिखे थे वो सारे nouns है ना। And now when you place a, n और the, there are specific rules related to it, ठीक है। जब भी हम a, n और the लगाते हैं किसी भी noun के बाद, किसी भी noun से पहले, then there has to be some rules which are to be followed. जैसे कि यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने ये कहाँ पे लिखा है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड दोनों चीज़ें याद रखना स्टूडेंट्स। पहला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, लेकिन उसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट का ही है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं प्लेट, प्लेट, सो हियर द फर्स्ट साउंड दैट वी हियर इज प, प, दैट इज द साउंड ऑफ पी, है ना, जो एक कॉन्सोनेंट है, राइट। मैं अभी सी लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले सी इज़ फॉर कॉन्सोनेंट। और जब मैं बोलती हूँ फोर्क, फोर्क, सो हियर व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड दैट यू हियर, फ, फ, एंड दैट साउंड फ इज ऑफ लेटर एफ विच इज़ अगेन कॉन्सोनेंट। सो प्लेट और फोर्क दोनों जो वर्ड्स है या दोनों जो नाउन्स है, उसका पहला साउंड कौन सा आया हमें, कॉन्सोनेंट का। कौन सा साउंड आया, कॉन्सोनेंट का, ठीक है। द फर्स्ट साउंड इज दैट ऑफ कॉन्सोनेंट। एंड यू कैन ऑल्सो मार्क वन मोर थिंग कि वो दोनों ही नाउन्स जो है वो सिंगुलर है। प्लेट भी एक ही है, फोर्क भी एक ही है और नाइफ भी एक ही है ना। अभी एन कहाँ पर लगाया है हमने, एग के साथ। ये जो वर्ड है एग, नाउन जो है, उसके साथ हमने लगाया है एन, बिकॉज यहाँ पे जो पहला साउंड है, ठीक है, वॉवेल तो है ही, पहला लेटर ई है, लेकिन उसके अलावा जब हम बोलते हैं एग, एग, सो सबसे पहले जो साउंड आता है वो होता है ए, दैट इज़ द साउंड ऑफ ई एंड इट्स ए वॉवेल, ठीक है। और जब भी हमारा पहला साउंड वॉवेल होता है तब हमें एन लगाना है, ओके। और उसमें भी यही रूल लगेगा कि वो एन कब लगाया जाएगा, जब आपका नाउन सिंगुलर हो। मतलब ए और एन दोनों आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ। प्लूरल नाउन के साथ हम ए या एन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हम ए और एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में लगाएंगे, ओके। और उसमें ए कब लगाना है, जब कॉन्सोनेंट का साउंड हो तब, और एन कब लगाना है, जब वॉवेल का साउंड हो तब, ठीक है। और तीसरा जो आर्टिकल है वो है द। द इज़ यूज टू रेफर टू पर्टिकुलर थिंग्स। पर्टिकुलर थिंग्स का मतलब क्या होता है, जब आपको पक्का मालूम है कि आप कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, है ना। आप स्पेसिफिक हो कि आप यही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि
विल यू प्लीज़ सेट द टेबल. सो यहाँ पे मम्मी को मालूम है और मम्मी दिखा रही है कि यू हैव टू सेट द टेबल विच इज़ देयर इन दियर हाउस. दैट मीन्स मदर नोज कि कौन से टेबल के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ए टेबल नहीं लिखा है, राइट. लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ए प्लेट, ए फोर्क, ए नाइफ, वो सारी चीज़ें तो कोई भी हो सकती है. प्लेट्स तो बहुत सारी है, फोर्क्स भी बहुत सारे होंगे, नाइफ्स भी बहुत सारे होंगे, है ना. लेकिन उनके साथ ए क्यों लगाया है? क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं है कि हम कौन सी प्लेट या कौन से फोर्क के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम ग्लास ऑफ मिल्क की बात करते हैं, ऑल्सो हैव द ग्लास ऑफ मिल्क, दैट मीन्स जो ग्लास में मिल्क भरा हुआ है वो वाला ग्लास. दैट मीन्स मदर इज स्पेसिफिक ओवर हियर कि वो कौन से ग्लास के बारे में बात कर रही है, राइट. शी इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्लास ऑफ मिल्क विच हैज़ मिल्क इन इट, जिसके अंदर मिल्क है. मम्मी उसी के बारे में बात कर रही है, इसीलिए ध यूज़ करेंगे, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि हमें 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं ये चैप्टर में, जो है ए, एन एंड द. ओके, ये थोड़ा सा ही था अभी, तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दिया हुआ है. वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो. बट फर्स्ट वी वुड बी स्टडिंग द 2 आर्टिकल्स, दैट इज़ ए एंड एन. सो नाउ आई होप कि यू रिमेंबर कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन एंड द, है ना. और वो क्या काम करते हैं? वो हमें दिखाते हैं कि हम कौन से नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. इट मे ऑल्सो शो द नंबर ऑफ दैट नाउन. ओके, नाउ लेट्स सी सम रूल्स विच आर गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स. वी यूज ए एंड एन, sorry, with the nouns that are singular in number. Then we use a with the nouns starting with consonant, and we also use n with the nouns starting with vowel. ये एक कॉमन रूल है जो आप अब तक पढ़ते आए हो कि ए उसके साथ लगाना है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, और एन किसके साथ जाएगा? जिसका पहला लेटर वोवेल है वो. लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज देर आर सम वर्ड्स विच हैज़ कॉन्सोनेंट इन द बिगिनिंग, लेकिन उसका जो साउंड होगा वो आपका वोवेल का होगा. और कभी कभी ऐसा होगा कि आपका पहला लेटर वोवेल होगा लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का होगा. तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जब हम ए और एन की बारे में सीख रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू कैन सी दैट दिस इज़ ए क्रो. क्रो पहला साउंड क, सी का है और लेटर भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने लगाया ए. Then the second thing is that is an eagle. Now here when you pronounce eagle, जब हम pronounce करते हैं eagle, उसमें पहला लेटर ई है जो वोवेल है और साउंड भी ई का ही आ रहा है, इसीलिए हमने एन लगाया है. I want a mango. I want a mango. यह मैंगो का पहला लेटर एम which is consonant, right? And mango, that means this first sound is m, that means letter m which is a consonant, and that's why we are going to use a along with it. And last one is I have an apple. I have an apple. Now when I say an apple, first letter is vowel and pronunciation is also apple, that means a, that's why we have used n. लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया. आप सिर्फ लेटर्स मत देखना जब भी आप ए और एन लगाते हो. डोंट गो विद द स्टार्टिंग और द बिगिनिंग लेटर, ठीक है. यू हैव टू गो विद द साउंड ऑफ दैट लेटर. व्हाट यू आर गोइंग टू सी? साउंड ऑफ द लेटर. बिगिनिंग सबसे पहला साउंड कौन सा है? अगर बिगनिंग का जो साउंड है, जब भी आप कोई वर्ड बोलते हो और उसका पहला साउंड जो आपको मिलता है वो अगर कॉन्सोनेंट का है तो ए लगाएंगे, और अगर वो साउंड वोवेल का है तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर, डोंट गो ओनली विद द लेटर्स बिकॉज देर माइट बी अ कन्फ्यूजन ओवर देयर, बट इफ़ यू गो विद द साउंड
If you go with the sound of that word, then you won't be confused and you would be able to rectify, you would be able to answer कि कहाँ पर a लिखना है और कहाँ पर n लिखना है. अगर आप ये ग्रामर बाइट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि we also use a with some words that begins with vowel because these vowels sound like consonants. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स यूनिकॉर्न का. नाउ नॉर्मली इफ़ यू सी दिस वर्ड यूनिकॉर्न, इसमें हमारा पहला लेटर क्या है, वोवेल है, तो उस हिसाब से तो हमें एन लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि पहला लेटर तो वोवेल है. लेकिन जब हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, व्हेन वी से यूनिकॉर्न, व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड दैट यू हियर स्टूडेंट्स? आपको पहला साउंड क्या आता है? यूनिकॉर्न, य यूनिकॉर्न, राइट. तो यहाँ पे आप जब यूनिकॉर्न बोलते हो तो आपको पहला साउंड वाई का आता है, य, दैट मीन्स वाई. और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है. इसीलिए यूनिकॉर्न के आगे हम लोग एन नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे हम लोग? ए लगाएंगे. क्यों लिखेंगे ए यूनिकॉर्न? बिकॉज बिकॉज यूनिकॉर्न का पहला साउंड, द फर्स्ट साउंड इज दैट ऑफ कॉन्सोनेंट. कौन सा वाला? वाई, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब हमें साउंड कॉन्सोनेंट का आता है तब हमें ए लगाना है, ठीक है. फिर आप भले ही उसका पहला लेटर वॉवेल ही क्यों ना हो, ओके, ये याद रखना कि अगर आपका पहला लेटर वॉवेल है लेकिन उसका जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो कॉन्सोनेंट का है पहला, तो हमें ए लगाना है, ठीक है. वैसे ही यूनिवर्सिटी है, राइट, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्स, व्हेन वी से यूनिवर्स, यू इज़ द वॉवेल, लेकिन साउंड आ रहा है वाई का, तो हम लगाएंगे ए, ओके. Now if I say umbrella, if I say umbrella, now here the first letter is U, right, that is consonant, vowel, and when we say the word umbrella, umbrella, so the first sound over here is that of U. Actually the sound of U is a, है ना. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला, ठीक है. समझ में आया आपको? ओके. नाउ वैसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसका जो साउंड होता है वो वॉवेल का होता है. जैसे कि हियर दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ आवर, HOUR, आवर. नाउ हियर एच इज साइलेंट. पहला लेटर क्या है आवर का? एच है, जो कॉन्सोनेंट है. तो इस हिसाब से तो हमें क्या लिखना चाहिए? ए लिखना चाहिए. लेकिन वो तो गलत हो जाएगा, ए नहीं लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम आवर बोलते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आवर. दैट मीन्स वी आर प्रोनाउंसिंग आ, आवर, आवर, आ. दैट मीन्स द फर्स्ट साउंड दैट यू हियर इज दैट ऑफ ए, है ना. पहला साउंड जो है वो किसका है? ए का है, एच का नहीं है, क्योंकि एच तो साइलेंट है आवर में. तो हमें पहला साउंड जो सुनाई दे रहा है वो क्या है? ए है. तो हम जब आवर लिखते हैं तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि एच साइलेंट है. ऑल्दो फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट बट वी डोंट प्रोनाउंस इट, वी डोंट प्रोनाउंस, उसका साउंड नहीं आता है. हम हावर नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, एंड आवर, राइट. सो हियर when we hear the sound, we don't hear the sound of O also, but yes we hear the sound of A, है ना. जब भी हम आवर बोलते हैं हमें कौन सा साउंड आता है? ए का साउंड आता है, इसीलिए हम एन लगाते हैं. एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, वो है ऑनेस्ट. नाउ इन दिस वर्ड ऑल्सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, जो है एच. लेकिन जब हम बोलते हैं ऑनेस्ट, व्हेन वी से ऑनेस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहला साउंड क्या आता है? ओ का, और वो क्या है? वॉवेल है. इसीलिए यहाँ पर जो आर्टिकल लगेगा वो होगा एन, एन ऑनेस्ट मैन. ओके, समझ में आया आपको?
कि आपको क्या याद रखना है, साउंड्स याद रखना है। जब आपका पहला साउंड कॉन्सोनेंट है तो एन, और जब आपका पहला साउंड वोवेल है तो जब आपका पहला साउंड कॉन्सोनेंट है आपको ए लिखना है, और जब आपका पहला साउंड वोवेल है तब आपको एन लिखना है। ओके, सो रिमेंबर दिस रूल, ठीक है। You can see the example which is given over here. We use A with some words that begins with the vowel because these vowel sounds like consonant. This is a unicorn and I studied in a university. And in the same way we use N with some words that begin with consonant, but these consonants are silent in the words. जैसे कि I played for an hour. Arun is an honest man, right? तो दोनों के अंदर हमने एन लगाया है क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन वी यूज ए और एन डिपेंडिंग ऑन whether the adjective starts with a vowel or consonant. देखो अभी आपको मैंने ए और एन का रूल तो समझा दिया है ना, कि अगर नाउन का पहला लेटर या पहला साउंड जो है नाउन का वो अगर कॉन्सोनेंट का है तो ए और वोवेल का है तो एन। लेकिन मान लो कि उस नाउन के पहले एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है, तब हम नाउन का नहीं देखेंगे, हम वहाँ पर एडजेक्टिव का देखेंगे। जैसे यहाँ पे मंकी लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है नॉटी, नॉटी मंकी, राइट, नॉटी मंकी। सो हियर इन दिस वर्ड नॉटी मंकी, नॉटी हमारा एडजेक्टिव है और इसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है, तो हम ए या एन किसके बेस पर लगाएंगे, एडजेक्टिव के बेस पर। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, आई रोट इट क्वाइट डर्टी। Naughty monkey. Now here monkey is the noun and naughty जो है वो adjective है, लेकिन हमें a और n कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। We have to write over here before the adjective. So when we are placing a और n before the adjective we need to look for that word. monkey को नहीं देखना है, naughty को देखना है। अभी naughty के अंदर पहला sound जो है naughty, naughty, the first sound is that of no, that means consonant, इसीलिए हम ए लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है एंग्री मैन। नाउ हियर इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट्स, जब हम लिखते हैं एंग्री मैन और यहाँ हमें आर्टिकल लगाना है, हमारा नाउन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ आवर नाउन, मैन, है ना। नाउन क्या है हमारा, मैन है, लेकिन उसके आगे लगा हुआ है एडजेक्टिव एंग्री। अभी हमें एंग्री को देखकर कॉन्सोनेंट लगाना है। एंग्री, व्हेन वी से एंग्री, द फर्स्ट साउंड दैट यू हियर इज दैट ऑफ ए, एंग्री, दैट मीन्स द फर्स्ट साउंड इज ऑफ वोवेल ए, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट एन। अभी ये याद रखना कि हमने एंग्री को देख के एन लगाया है, मैन को देख के नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग nouns. So first we need to see the word और first we need to see the noun and find out whether उसका जो पहला sound है वो consonant का है या फिर vowel का है, right? पहला है केक, उसमें sound क्या आ रहा है केक में, पहला क, that is of C. So what are we going to write over here? A, है ना, A, cake. Second one, Easter egg. Which kind of egg? Easter egg. Now when we say Easter egg, हम कौन सा वाला वर्ड देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे जो है ईस्टर, और ईस्टर में पहला साउंड क्या आता है स्टूडेंट्स, ई, है ना, पहला साउंड क्या आता है, ई। सो वी आर गोइंग टू राइट एन ओवर हियर, एन ईस्टर एग। थर्ड वन, डैश ऑनेस्ट मैन, डैश ऑनेस्ट मैन। Now when we say honest man we have to look for the adjective, right? और honest के अंदर पहला साउंड क्या आता है, ओ का आता है, क्योंकि एच तो साइलेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन।
an honest man. Okay. Now let's see next one. Bell. Bell. First sound is of b. Bell. So the article would be a. Next one, fairy. Fairy. When you say the word fairy, f, that is the sound of f. So we are going to write a. Right? A, fairy. Next one, island. Island. When we say island, the first sound is that of I. Island. I. है ना? So here what are we going to write? We are going to write N. An island. Next word, seventh one, guest. What is the word? Guest. Now when you say guest, the first sound is that of G. G. So we are going to write a guest. Eighth one, toothpick. Toothpick. When we say toothpick, the first sound is that of T. Toothpick. T. So we are going to write A. Next one, good idea. Good idea. आइडिया इज़ द नाउन, लेकिन गुड जो है वो एडजेक्टिव है और उसके बेसिस पर हमें ए और एन लगाना है. गुड. So when you say good, the first sound you hear is that of G. So we are going to write a, good idea. And last one, dash angry lady. Angry lady. Lady is the noun, लेकिन हमें देखना है एडजेक्टिव जो है एंग्री. एंग्री में सबसे पहला साउंड क्या आता है स्टूडेंट्स? ए. Angry. That means we are going to write N. An angry lady. Okay students? So I hope कि आपको ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो गई है ना? एंड ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बी, now that you have to do it as homework in the textbook itself. ठीक है, आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क है. ठीक है, हम लोग कल चेक करेंगे इसके आंसर्स. ओके, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ एंड टुमारो वी विल चेक द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू.